गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन द आफ्टरनून आई सॉ one of the status of my friend. He has shared some beautiful moments of eating a pizza. Yes, and somehow it was my favorite pizza. So ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे दोस्त पिज़्ज़ा खाएं एंड हम पीछे रह जाएं. So I just right head towards the pizza corner which is there nearby me, and I asked the person to provide me my favorite pizza, that is margarita. So which one is your favorite pizza? Don't forget to let me know in the comment section below. My favorite pizza is margarita. So that person, after waiting for long 30 minutes, he gave me that pizza. So at that time when I was having my pizza, I just noticed one thing, that he forgot to give the extra toppings, which is my favorite. I just headed towards that person and I told him that please give me some extra toppings because I am here just for that. So vocabularies are also like extra toppings, or we can say it plays a very important role in framing a sentence. So इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है Let's Learn English. So topic for today is how to improve your vocabulary. So vocabulary को improve करने से पहले हम ये जानेंगे कि vocabulary का मतलब क्या होता है, यानी what is the meaning of vocabulary. All the words in a language are known as vocabulary. किसी भाषा के समान शब्द या फिर भाषा का शब्द भंडार, उसे हम vocabulary कहते हैं. Vocabulary refers to the words we must understand to communicate effectively. उन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना जिसे हम अच्छे से समझ सकें और अपने कम्युनिकेशन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकें. That is the meaning of vocabulary. Educators often consider 4 types of vocabulary. So how many types of vocabularies are there? There are basically 4 types of vocabulary. First one is listening vocabulary, second one is speaking vocabulary, third one is reading vocabulary, and the fourth one is writing vocabulary, जिसे हम short form में LSRW भी कहते हैं. So listening vocabulary refers to the words we need to know to understand what we hear. जिन शब्दों को हम सुनते हैं हम उनका मतलब समझ सकें, इसका मतलब होता है लिसनिंग वोकैबुलरी. उसी तरह से जब हम किन्हीं शब्दों को बोलते हैं, यानी कि whenever we are speaking some words, we should understand the meaning of those words. That is known as speaking vocabulary. The third one is reading vocabulary. Whenever we are reading some words, we should definitely know about the meaning of those words. And writing vocabulary, it means like yesterday we have read on that topic how to write an essay. There I have included a lot of vocabulary. So first I understood the meaning of those vocabulary, and after that I just implemented all those things while I was writing my essay. So इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स को हम जानेंगे जिसे हम अपने रेगुलर यानी कि डेली यूजेस में प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हियर आर सम वर्ड्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. सबसे पहले हम छोटे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन स्लोली विल नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन समडे. समडे का हिंदी में मतलब होता है किसी दिन. बच्चों, जब भी हम किसी दिन के बारे में बात करते हैं, एट दैट टाइम इन इंग्लिश वी कॉल इट सम डेज. आज कल यानी कि नाउ अ डेज. उसके बाद उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे देयर आफ्टर. इसके बाद यानी कि हेयर आफ्टर इन इंग्लिश वी कॉल इट. इसके बाद से. कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जिसका मतलब हमें हिंदी में नहीं पता होता, या फिर हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब हमें इंग्लिश में नहीं पता होता. जस्ट लाइक दिस वन, इसके बाद मीन्स हियर आफ्टर, दैट वी ऑल नो. बट इसके बाद से
ये हम हिंदी में आसानी से कह सकते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट इन इंग्लिश, एट दैट टाइम वी आर डूइंग मिस्टेक्स. सो इसके बाद से अगर कोई आपसे पूछे, देन आंसर इट henceforth. किसी भी समय यानी एनी टाइम, कुछ समय, सम टाइम, इसमें, wherein, whereupon, जिस पर, यानी कि हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसे हम इंग्लिश में कहेंगे whereupon. उसके बाद यानी thereupon. आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर. यस, नाउ इन दिस चार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक. एक का मतलब होता है दर्द. फॉर एग्जाम्पल, कान का दर्द. इफ यू आर हैविंग एन ईयर एक, देन इन इंग्लिश यू विल कॉल इट ईयर एक. सर में आपके दर्द होगा, सो यू आर कमिंग टू मी मैक्सिमम टाइम एंड यू आर टेलिंग, मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू से, एट दैट टाइम यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. सो अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, इफ योर टीचर विल आस्क यू दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद यू, एट दैट टाइम यू शुड आंसर, मैम आई हैव एन हेडेक, यानी कि मुझे हेडेक हो रहा है, यानी सर दर्द हो रहा है. पीठ दर्द ज़्यादातर होता है खासकर हमारी मम्मास के साथ, whenever they are working in kitchen or with some sports person, whenever they are doing some intense workout, at that time might be they are having backache, यानी कि उनके पीठ में दर्द हो जाता है. सो पीठ दर्द को हम इंग्लिश में कहेंगे बैक एक. दांत का दर्द होता है, सो दांत के दर्द को हम इंग्लिश में कहेंगे टूथेक. हमारे पेट में दर्द होता है ना बच्चों. डोंट लाई, बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर ईटिंग जंक फूड्स sometimes, not every time, but whenever you are eating some junk food and it is not digested, at that time we all are having stomach ache. तो जब भी आपके पेट में दर्द हो, आप अपने टीचर के पास जाइए एंड उनसे कहिए, मैम आई एम हैविंग स्टोमैक एक, यानी मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है. दांत की सड़न, यानी कि होता है ना बच्चों, जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हो दांत उन्हीं के सड़ते हैं. सो डोंट यू डेयर टू ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स. आई नो चॉकलेट इज माई फेवरेट ऑल्सो, बट यू नो व्हेन आई वॉज अ स्मॉल लिटिल गर्ल, आई वॉज ईटिंग लॉट ऑफ चॉकलेट एंड एज अ रिजल्ट मेरे भी दांत सड़ गए. और डॉक्टर ने जब मेरे दांत निकाला उस वक्त मुझे बहुत पेन हुआ था. सो इट इज़ माई सजेशन टू यू ऑल, don't ever try to eat lot of chocolate. Yes, थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, but don't eat lot of chocolates. Then अगर आप lot of chocolate खाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स या फिर स्वीट्स खाते हैं, तो आपको क्या होगा? टूथ एक, यानी कि सॉरी नॉट टूथ एक, टूथ एक इज दांत दर्द. टूथ डीके, इसे हम कहेंगे टूथ डीके. सो अब आप लोगों को फर्क भी समझ आया होगा कि दांत दर्द और दांत की सड़न ये दोनों चीज अलग है. अगर आपके दांत में दर्द है तो आप टूथेक कहेंगे और दांत की सड़न जो है उसे हम टूथ डीके कहेंगे. बट दे आर रिलेटेड, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं. अगर देखा जाए तो आपके दांत में दर्द तो तभी होगा ना बच्चों जब आपके दांत सड़ जाएंगे, यानी कि टूथ डीके रिजल्ट्स टूथेक. आगे बढ़ेंगे अपने 7th वर्ड की ओर. कब्ज. कब्ज का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन. यस, if we are eating lot of junk foods, at that time we are having constipation. Okay. Then कमजोरी. कमजोरी हमको लगता है ना, whenever during the mass drill time you all are standing in front of the field and doing the mass drill, at that time you people are falling down, जिसे हम इंग्लिश में वीकनेस कहते हैं. वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ने पे, जब हमें वीकनेस होती है हम क्या करते हैं, हम फेंट हो जाते हैं. सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड भी एक वोकैबलरी वर्ड है बच्चों. इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना. आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर. मेरा सर मत खाओ. ज़्यादातर ये सेंटेंसेस हमें कौन बोलता है? कौन बोलता है बच्चों? ये सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम
My elder sister is telling. Because you know why? I used to ask her stupid questions. That is why she is telling me मेरा सर मत खाओ. तो मेरा सर मत खाओ ये तो हम हिंदी में कहते हैं. अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? डोंट नैग मी. डोंट नैग मी. देन यू आर अ कावर्ड. इसका मतलब क्या है? तुम डरपोक हो. थोड़ी दया करो यानी कि शो सम पिटी. दया को हम पिटी कहते हैं इन इंग्लिश. जूते पहन लो. Your mothers are telling you na whenever you are going to the schools. Now to in pandemic situation it is not possible to come to the school, but when during some interval of time you came to school, at that time you wore your shoe. So who is telling this sentence maximum time? Your mother and your father also sometimes. So put on the shoes. इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? Put on the shoes. चलो बाद में बात करते हैं. कहते हैं ना हम अपने दोस्तों से, सपोज योर बस इज देयर वेटिंग फॉर यू एंड अभी छुट्टी के लिए बेल बज चुका है, बट देयर आर सम गॉसिप्स दैट यू बोथ फ्रेंड्स आर डूइंग. उस वक्त तुम क्या कहते हो? चलो बाद में बात करते हैं. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स टॉक लेटर. वह घमंडी है. घमंडी का मतलब क्या होता है बच्चों? घमंडी का मतलब इंग्लिश में होता है स्नॉब. ही इज स्नॉब. बुरा मत मानो. बुरा मत मानो होता है ना, कभी हम अपने फ्रेंड को कोई हर्टिंग वर्ड्स कह देते हैं, फिर हम उनसे क्या कहते हैं? बुरा मत मानना या बुरा मत मानो. तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नो ऑफेंस. घूरो मत. घूरते हैं ना, जब हमारा फ्रेंड हमारे पेंसिल बॉक्स में से हमारी पेंसिल ले जाए, वो भी हमसे बिना पूछे, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं? हम उन्हें घूरते हैं. जैसे ही टीचर जाएंगे, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइट स्लैप बिकॉज वॉट यू डिड, यू जस्ट ओपन माई पेंसिल बॉक्स एंड विदाउट माई परमिशन यू हैव टेकन माई पेंसिल. दैट इज वेरी रॉन्ग, है कि नहीं? तो उस वक्त क्या करते हो आप लोग? अपने दोस्त को घूरते हो. तो उसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है बच्चों? उसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होगा डोंट स्टेयर. डोंट स्टेयर. यू कैन रिपीट आफ्टर मी. कोई बात नहीं यानी कि नो मेंशन. कोई बात नहीं को हम इंग्लिश में कहेंगे नो मेंशन. बस बहुत हुआ. Enough is enough. When we get tired of something, at that time we are using this vocabulary. Enough is enough. आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर. चालाक मत बनो. कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम योर टीचर इज टेलिंग यू दैट चालाक मत बनो. इट मीन्स यू हैव कमिटेड समथिंग. Yes or no? You did something. That is why your teacher is scolding you. And at that time she is telling you चालाक मत बनो. यानी इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? Don't be smart. बहुत मज़ा आया. पिकनिक पर जाने से बहुत मज़ा आता है ना बच्चों. And now the season of picnics are going on. So उस वक्त आप इंग्लिश में क्या कहोगे? Enjoyed a lot. You are lying. यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो. ये तो हम सभी को पता है. तुमने मुझे चौंका दिया. You surprised me. कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि उसने चाहे जो भी किया हो उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डजेंट मैटर. इंग्लिश में हम इसे कहेंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी में. एंड इन इंग्लिश विल ट्रांसलेट इट बाय टेलिंग इट डजेंट मैटर. मैं तैयार हूं. Yes, now annual sports are there and I am ready. दबे पांव चलो. दबे पांव चलो का मतलब क्या होता है बच्चों? Walk on the tiptoe. होता है ना जब आप लोग प्रेयर के लिए असेंबली हॉल की तरफ जाते हो, when you all are moving towards your assembly hall, at that time what you people are doing? You all are dodging your feet. Oh my God! One more vocabulary came. Dodging your feet. Dodging का मतलब हम जो feet को you people are just rubbing your feet on the floor, that is the actual meaning of dodging the feet. So stop dodging your feet. Your teacher is telling like that. Or walk on the tiptoe.
यानी कि दबे पांव चलो, आपको दबे पांव चलना चाहिए, या फिर आप तो दबे पांव नहीं चल सकते, यू कैन वॉक नॉर्मली, बट सपोज योर सिस्टर इज वॉचिंग हर फेवरेट सीरियल on the television, and you as a small brother, what you did, now your Cartoon Network is going to come and you just walk on the tiptoe and you have snatched the remote control from her and started watching your favorite cartoon. At that time you have to walk on the tiptoe, because if you will not walk on the tiptoe, what will happen? She will get aware that you are coming and she will hide the remote control. Yes or no? Definitely. आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. यस, बहाने मत बनाओ, यानी डोंट मेक एक्सक्यूजेस. जा कर सो जाओ, गो एंड स्लीप. बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग. घाव काफी गहरा है, द वुंड इज क्वाइट डीप. आग में घी मत डालो. जब दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, तीसरा क्या करता है? तीसरा उसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे रोकने के लिए आप लोग क्या बोलोगे? डोंट फैन द फ्लेम. डोंट फैन द फ्लेम. दिल लगाकर काम करो. वर्क होल हार्टेडली, देन ओनली यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम. यस और नो? वह तुम्हारे लिए पागल है, ही इज क्रेजी फॉर यू. ज्यादा भाव मत खाओ. डोंट एक्ट सो प्राइसी. अपना गुस्सा थूक दो. स्पिट आउट योर एंगर. इसके लिए उसे मनाओ. कन्विंस हिम फॉर इट. मुझे पार्क ले चलो. टेक मी टू द पार्क. क्या तुम मुझे जगा दोगे? विल यू वेक मी अप? मैं किराए पे रह रहा हूं. आई एम लिविंग ऑन रेंट. वह उसे छेड़ रहा था. He was teasing her. अपनी आंखें खुली रखो. Keep your eyes open. In every condition, यानी कि हर हाल में. At any rate, किसी भी कीमत पर. In the blink of eye, यानी कि पलक झपकते. पलक झपकते ही क्या होता है बच्चों? Any example that you want to give you from your side? पलक झपकते ही करंट आता है एंड पलक झपकते ही करंट चला भी जाता है. होता है ना हमारे घर में नॉर्मली. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं जा रहे हैं एंड आपने एक बहुत प्यारे से, बहुत ही स्वीट से बर्ड को देखा, तो यू विल ब्लिंक. इन द ब्लिंक ऑफ योर आई दैट बर्ड विल फ्लाई अवे. होता है ना? आपने बस अपनी पलकों को झपका एंड वो पंछी उड़कर चला गया. एट 6s and 7s, अस्त व्यस्त हालत में. यानी कि अनअरेंज्ड, यानी कि अनऑर्डरली. किसी भी चीज़ को हम अस्त व्यस्त हालत में अगर रखते हैं तो उसका इंग्लिश में वोकैबुलरी क्या होता है? एट 6s and 7s. एट रैंडम, बिना किसी काम के. इन नो टाइम, यानी बहुत जल्दी. फ्रॉम डॉन टू डस्क. डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, डस्क का मतलब होता है इवनिंग. सो सुबह से लेकर शाम तक. फ्रॉम टो टू टिप, यानी सिर से पैर तक. राउंड द क्लॉक, हर वक्त. विद द हेल्प ऑफ, की मदद से. एट द एंड ऑफ द डे, आखिरकार. फॉर द सेक ऑफ, यानी किसी के वास्ते. इंस्टेड ऑफ, किसी के बजाय. इन स्पाइट ऑफ, किसी चीज होने के बावजूद. इन विल एंड वो, यानी कि सुख दुख में. So this was all about vocabulary. So I want that you all should have a rich vocabulary. Then only it will be easy for you to write different types of sentences and essays also. It will be helpful while you are expressing yourself in front of the audience, and when you have taken part in any elocution competition or in any debate competition, these vocabularies are definitely going to help you. So keep there on my channel, keep watching on the content of my channel, because every day we are going to learn different kind of words, and I'm going to give you some drill exercises also to complete. So तब तक के लिए शुक्रिया सभी को, and good night everyone.